whatever happens in our life, it happens because we take some action in our life. Our action takes place because we decide, we take decision, in our life. That's basically promotes the action. Now my question is, what decides our decision? हमारे डिसीजंस को कौन इम्पैक्ट करता है? हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है हमारा सोच, our thoughts. If our thought is negative, then of course our decision will be negative, our action will be negative. Same way, when we think negative way, lot of things in our life changes. And today what I'm going to tell you, very few number of people, they know this secret. Right now you can see on my screen there are some pictures. Wisdom, truth. You might be guessing कि क्या है भाई, ये क्या है? I understand, thank you. You know, then we have got wisdom, truth. ये मतलब ये सब क्या है आपको पता है, लेकिन the pictures you can see, जो pictures आप देख रहे हो, exactly वो picture क्या है? That's a big, I think that's a big information that you are going to have today. आज आपको पता चलेगा. Okay, and the topic which we are going to talk on today is water, the greatest healer. Water, the greatest healer. शायद आप भी सोच रहे होंगे भाई, what is this? What kind of topic we are doing today? Water, पानी, we all know यार पानी क्या है, हमें तो पता ही है. But आज आप पानी के बारे में जो जानोगे, शायद because very very few people they know about this. What is water? So I just want to, before I go ahead, I would like to know from you, those who are watching me right now, anyone, water is a healer. Water, what is water to you? If I ask you, if anybody wants to say, please raise your hand. I'll give you a chance to speak. According to you, what is water? Water कितना important है? And water, what is water? Pani. What is the importance of water in our personality? If you want to say, please raise your hand. I'll give you opportunity to speak. Yeah, Rupa. Sir, water is life and Amrit. Amrit. Okay. Okay, I think Poonam Taneja, you want to say something? Yes, sir. Sir, as everybody knows that 70% of our body is made up of water. So water is very essential part of our life. How we drink water, how much we drink water, and the way we drink water. Like if we give vibration to water before drinking it, so it can be heal our body. If we are suffering from any pain or anything else, any disease. So if we charge water, if we take water in the glass and if we charge it with the positive vibration, so after then we take it, so it can heal our body. So that's why I think it is very essential part of our life. Very good, very good, very good. Okay, we'll go to Poonam Shukla. Sir, as Poonam Taneja said that the 70% of our body is made up of water. So it's a proof how it's important. 70% is the measure amount. Okay, measure portion. Absolutely. So it's a proof that how it's important. And water is the healer in the sense of when you are tired, when you are feeling tired, it will give you a relaxation within second. Okay, and it can also heal you. Tear is also form of water. If you are sad and if you are crying, it also help you to relax you. So water is very important. If you cry, it doesn't mean it relax you, it will give you relaxation. It's also a form of water. So water is very important in every form. So okay, thank you. to me, Yeah, thank you, Poonam. Wonderful, wonderful. Okay, so today our topic is water is a healer. It has tremendous, qualities, tremendous values, which we are going to learn.
Yes, water is life. Without water, we cannot survive. Absolutely. You know, water is circulating the earth and nurturing the soil. It is the source of all the life forms on the planet. This is the source of all the life forms. दुनिया में कोई भी अगर लाइफ है तो वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो. Without water we cannot live. See, I'm going very simple so you all can understand, and please don't leave this class until you see this class totally, because this is very important class. It's not about only water, but it is more on that. Okay, so we need water. All the life forms, they need water, but many important things of water is still unexplored. बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता पानी के बारे में, और आज आप जानने वाले हो बहुत कुछ चीज. Some hidden messages in water. Some hidden messages. आपको पता भी नहीं कि वाटर के अंदर hidden messages हैं जो हमें पता भी नहीं. This is so damn important. And ये मैं नहीं बोल रहा हूं. This has been experimented by Dr. Masaru Emoto. आप इस सेशन को देखने के बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हो डॉक्टर मसारो इमोटो. He was a doctor and he invented this. So what exactly it is? As per Dr. Masaru Emoto's research, water has many messages to tell us. Water बहुत कुछ बोलता है जो हम नहीं समझते, हमें वो समझना पड़ेगा. Guys, this is one of the drops microscopic view of water. शायद ही आप लोगों में किसी ने ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है. जो अभी आप पिक्चर ऑन द स्क्रीन में देख रहे हो, दैट इज द माइक्रोस्कोप से लिया गया एक वाटर ड्रॉप है. See how beautiful that water drop. I don't know whether आपने इससे पहले कभी एक वाटर ड्रॉप का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है कि नहीं, but this is the microscopic view of water droplets. How beautiful it is. ये टैप वाटर, आप लोग घर पे टैप वाटर तो रखते ही हो. टैप वाटर, ये जो आप व्यू देख रहे हो, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द टैप वाटर. सोचिए, इससे पहले जो मैंने दिखाया था, दैट वाज आल्सो द टैप, दैट वाज आल्सो द वाटर ड्रॉपलेट्स. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. एंड सी दिस, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, सो डल. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पानी आप लोग पीते हो, द वाटर यू ड्रिंक, वो वाटर का अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो वो कैसा दिखेगा? अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, these are also the, you know, these are all microscopic view of waters. आप देखो सारे व्यूज कितने डिफरेंट है. एक एक क्रिस्टल्स जो आप देख रहे हो, सारे क्रिस्टल कितने डिफरेंट है. You see, this crystal is so good. This crystal is so good. Now this crystal, see this one. So these are all water crystals. ये क्रिस्टल आपके शरीर के अंदर में भी है, ये क्रिस्टल आपके शरीर के बाहर भी है. You know, somebody said, sir, our body is full of water, right? Full of water. More than 70% is water, right? तो बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर जो वाटर है, उसका अगर एक ड्रॉप लिया जाए आपके घर के सामने से, तो वो वाटर ड्रॉप
का जो वाटर ड्रॉप का जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा वो कैसा होगा, इनमें से कौन सा होगा? थिंक अबाउट इट, दिस इज अ बिग थिंग. ओके, लेट्स सी, गो अहेड. जो मिनरल वाटर मिलता है बाजार में, अगर अच्छा मिनरल वाटर हो, यू कैन सी देयर आर टू पिक्चर्स हियर. ये कुछ मिनरल वाटर का माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हो. द फर्स्ट वन, जब पहला वाला है, उसमें भी थोड़ा बहुत माइक्रो जो क्रिस्टल व्यू है वो आप देख सकते हो. क्रिस्टल, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल व्यू. हेक्सागोनल का मतलब होता है, द हेक्सागोनल मीन्स वाटर का जो क्रिस्टल होता है उसका, अगर आप उसको अगर अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स होते हैं. एक वाटर ड्रॉपलेट्स का 6 डिफरेंट साइड्स होता है. मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था. यू सी दिस 1 2 3 4 5 6. दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. सो ऐसा क्यों होता है कि कोई कुछ में हेक्सागोनल दिख नहीं रहा है, किसी में हेक्सागोनल दिख रहा है? मेरे पीछे आप अच्छे से देखो. Some are looking very dull and some are looking very hexagonal. आप थैंक यू, जो मेरे पीछे जो थैंक यू है उसमें देखो, इट इज गोल्डन हेक्सागोनल. इट इज गोल्डन हेक्सागोनल. नाउ माय क्वेश्चन इज, आप सोचो, जो द वाटर यू ड्रिंक और द वाटर योर बॉडी हैज, वो हेक्सागोनल है कि क्या है? नोबडी नोज. As per Masaru Emoto's research, if snow has crystals, so water should too when it is frozen. Very important thing. आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी, अगर बर्फ गिरता है ना, तो बर्फ जब पेड़ से लगा हुआ रहता है या कहीं पे भी, वहां पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो वैसे ही द सेम वे, जो पानी आप लोग पीते हो, वहां सब पानी के ड्रॉप लेके उसको माइक्रोस्कोप से देखने से नहीं होगा. यू हैव टू टेक अ ड्रॉप, यू हैव टू फ्रीज इट. आपको उसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा. वो जब एक हार्ड हो जाएगा तभी आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं. ओके, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी. वो नॉर्मल वाटर से आप वो ड्रॉप लोगे तो नहीं होगा, उसको हेक्सागोनल होना पड़ेगा. You can see when it is frozen. And at last, Dr. Masaru's research has given a shape of crystal in water in mountain. This is a very important part. Mountain, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा. आप लोग अगर हिमालयाज में जाओगे, हिमालय जहां से पानी आता है, आप अगर हिमालयाज के वहां से वाटर का एक वाटर शीशी में वाटर भर दोगे, उसको अगर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसमें आपको वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा. हेक्सागोनल 6 साइड रहेगा, क्योंकि जो हिमालय से जो पानी आता है ना, इट हैज ऑल द रिक्वायर्ड मिनरल्स. ऑल द रिक्वायर्ड मिनरल्स. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड. आप लोग सोच रहे होगे तो हेक्सागोनल हो या हेक्सागोनल ना हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? सी, अगर एक वाटर ड्रॉप में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिस्टल होता है, इसका मतलब है कि उस वाटर में मिनरल्स है. मिनरल्स, यू अंडरस्टैंड मिनरल्स? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जितने भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स अवेलेबल हैं. ये केमिकल स्ट्रक्चर बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. अगर ये क्रिस्टल नहीं है, इसका मतलब है कि मिनरल्स वाटर में नहीं है. आप जो पानी पी रहे हो वो बस पानी है,
देयर आर नो एनी मिनरल्स, कुछ मिनरल्स नहीं है उसमें, वो पी के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बस आप जीवित हो, बट उस पानी को पी के आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहा है। आप देखोगे जो हिमालयाज में जो लोग रहते हैं ना, जो लोग पानी पीते हैं, वो लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। People who live in the mountains, you know, if you see, you know, they are very fast, वो you know, they run so fast, वो लोग rest नहीं लेते, फिर भी they are always enthusiastic because they get the pure water, they get the pure water, mineral water। वो mineral वो मतलब वो बाजार में मिनरल वाटर वो नहीं, एकदम ओरिजिनल मिनरल वाटर जो हिमालय से निकलता है। और हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स नहीं होता है नॉर्मली, वो बस उबाला हुआ रहता है, यू नो, इट्स अ बॉइल्ड वाटर, और इट्स नॉट अ मिनरलाइज्ड वाटर जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, दीस केमिकल्स आर देयर। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पानी पीते हो उसमें मिनरल्स हो। बट इज इट पॉसिबल कि आप हमेशा हिमालयस में जाके पानी लेके आओगे? It is not possible, right? You cannot go. So what will you do? Yeah. If you can't go to mineral, you know, mountain, then how will you get the mineral water? We cannot go to mountains every day and we can bring water. No, we cannot. So guys, why and how crystals are formed? मैंने ये बताया कि क्यों crystal forms होता है। और क्या होगा अगर ये crystal form नहीं होता है तो क्या होगा? सिंपल बात है दोस्तों, अगर आपके पानी, जो पानी आप पीते हो या जो पानी आपके सामने है, अगर उस पानी में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता, आप देखो अभी जो पिक्चर आप पानी का देख रहे हो, इसमें कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पानी बस आपको शायद बचा के रखा है, बट इस पानी में कोई भी मिनरल्स नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ये पी के आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बस आप बचे रहोगे, बट आपको शक्ति नहीं मिलेगा। इसमें देयर इज नो मिनरल इन दिस। Okay, guys, this is very important. This is very much important. इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Does anyone know what is this? कोई बता सकता है ये क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं? Can anybody tell me what is this and what we can do? Is there anyone who can tell me what is this? You can raise your hand, I'll give you a chance to speak. Okay, Chanda Bose. Yeah, Chanda, tell me, क्या है ये? Your voice is not coming. हाइड्रोमीटर। उससे क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर का ये नापा जाता है, मेजरमेंट। Okay, not really, not really. आप close हो. Yes, Shweta, you want to say something? pH meter. Yeah? pH, उससे क्या होगा? पानी का जो लेवल रहता है TDS, जिससे अपने को पता लग जाता है कि लाइक किसमें कितना क्लोराइड है, कितना तो इम्पोर्टेंट मिनरल्स नहीं है, बट क्लोराइड है या नहीं है। Okay, 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 okay. I'll tell you. I'll tell you. I'll tell you. Very good. Very close. Okay, Kanchan wants to say. Water purifier. Purifier. Okay, purifier. Okay, fine. See, purifier मतलब ये नहीं कि water में पूरा minerals available होगा। Purified मतलब वो अच्छे से boiled water है, उसमें कोई कोई भी virus, bacteria form नहीं है। That is called pure water. Guys, pure water may not be mineralized water. Pure water में mineral होगा, कोई इसमें कोई मतलब ये कोई surety नहीं है, ये दिमाग में रखना हमेशा। Pure water is different, mineralized water is different. Okay, now please, we have less time, so I'm going to tell you what is this. Guys, this is an
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको पानी के अंदर 15 से 20 मिनट्स के लिए रखते हो, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, और वो एनवायरनमेंट से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके पानी के अंदर देता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली होता है, मतलब इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। जैसे हिमालय से पानी आता है तो पूरे इकोलॉजी से वो पूरे मिनरल्स को लेके हमारे पास लाता है। लेकिन अगर आपके पानी में मिनरल्स नहीं है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो अगर आप पानी के अंदर रखोगे तो वो करंट, मतलब करंट जो एनवायरनमेंट है, करंट जो बाहर में जो आपका परिवेश है, उससे एनवायरनमेंट से वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके वो पानी के अंदर एनर्जी को डालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से, ताकि पानी के अंदर मिनरल्स को बना सके, क्रिएट मिनरल्स। ओके, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मशीन है जिससे आप अपने नॉर्मल पानी को मिनरलाइज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो इस मशीन का जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है ये 2007 का कॉस्ट है, अप्रोक्स 1,20,000। ये कॉस्ट मैं बता रहा हूँ 2008 का बनाया हुआ कॉस्ट है ये। राइट नाउ दिस ऑब्जेक्ट is costed more than 5 lakhs. You know why the cost is so high? Because when your body is getting minerals, your body will grow more. आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, यू विल बी वेरी वेरी पावरफुल। इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द रियल एक्सपेरिमेंट। एक बार ये एक्सपेरिमेंट जब मैंने इस मशीन को देखा था ना, तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था। और एक्सपेरिमेंट एक मतलब नॉर्मल इंसान के साथ हुआ। उसका एज था अप्रोक्स 60 एज। प्लीज लिसन मी। एक 60 साल का इंसान को खड़ा किया, उसको नॉर्मल पानी पिलाया, जो नॉर्मल पानी हम लोग सब पीते हैं, वी टेक ड्रिंकिंग वाटर्स। फिर उसको बोला सीधा खड़ा रहो, वो सीधा खड़ा रहा। फिर वो नॉर्मल पानी पीने के बाद बगल में उसको एक लड़का बोला कि मैं आपको ढकेलूंगा, आप अपने आप को रोकना। बगल में जो इंसान है उसने उसे ढकेला, ओके, और वो गिर गया। एंड फिर उसे एक दूसरा ग्लास का पानी पिलाया गया। पानी पिलाने के बाद 5-10 मिनट के बाद उसको फिर से बोला कि आपको हम लोग फिर ढकेलेंगे। तो वो लड़का, वो 60 साल का इंसान फिर से खड़ा हो गया। वो जो नेक्स्ट वाला पानी था उसको पीने के बाद उसको एक इंसान मतलब धकेल रहा है, लेकिन धकेल नहीं पा रहा है, उसको हटा नहीं पा रहा है वो जगह से। He was not able to move, make that person move from that place. Imagine the power of minerals. हम लोग इतना पावर होता है, we never think about it. एक इंसान का पूरा इम्यूनिटी चेंज हो जाता है। फिर असल में ये बोला गया कि जो नेक्स्ट वाली जो पानी थी उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको 15 मिनट के लिए रखा गया था। वहां से एनवायरमेंट से उसने मिनरल लिया, फिर वो पानी को वो इंसान को पिलाया गया था। सो सेकंड वाला जो पानी था वो उस मशीन से प्रोसेस था। तो अगर मैं ये मशीन आपको 5 lakhs में बेचूं तो क्या आप इसे लोगे? माई क्वेश्चन इज दिस। अच्छा चलो 5 लाख छोड़ दो, मैं आपको 4 लाख में दूंगा। Who will pay? Who will pay? Please raise your hand. Who will? अच्छा 4 लाख नहीं नहीं नहीं, अच्छा 3 लाख, चलो 3 लाख। ये कोई मतलब मजाक हो रहा है क्या? यू विल बी सो स्ट्रांग, कोई कोविड आपको हिला नहीं सकता, कोई आपका हस्बैंड भी आपको हिला नहीं सकता। कोई हिला, आपका कोई दुश्मन आपको हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, आई एम टेलिंग यू दिस इज, मतलब पहले पहले मुझे भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। चलो 2 लाख, आप हमारे स्टूडेंट हो, 2 लाख।
अभी भी कोई हाथ नहीं उठा रहा है. इज इट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू? चलो भाई, लास्ट 1 लाख. इससे इससे कम नहीं कर सकता मैं. ओके, प्रशांति's daughter is raising hand. एब्सोल्युटली, सुरेंद्र कौर ने बहुत अच्छा बोला. इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, आप देखोगे हमारे जितने पुराने पुराने लोग थे वो बहुत हट्टे कट्टे थे. उनका जो हाइट होता था, हाइट भी बहुत ज्यादा होता था, और दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और आप एक चीज देखोगे, वो लोग ज्यादा दिन तक जीते भी थे. उनका जो एज होता था, दोस एजेस यूज्ड टू बी सो मोर. मेरे दादाजी थोड़े 85 में गए. अभी भी बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट 90-95, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था ना, उनका जो खाना पीना था, दैट वाज वेरी डिफरेंट. अरे हम लोग का छोड़ो, आप लोग जब बाहर कहीं जाओगे ना, कश्मीर या द गैंगटॉक हो गया, शिमला मनाली, आप वहां पे देखोगे लोग, जो बूढ़े लोग हैं वो भी बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत काम करते हैं. और इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे ऑलवेज टेक एब्सोल्युटली मिनरलाइज्ड वाटर. तो आज चलो 1 लाख छोड़ दो. तो चलो, आप हमारे स्टूडेंट हो, आपके लिए हम एक काम कर सकते हैं, 50,000 रख सकते हैं. कहा हम इसका प्राइस 2008 में 1,20,000, आपको मैं अभी 50,000 में बेच रहा हूँ, फिर भी आप लोग हंस रहे हो. सर कहाँ से? Oh, Prashanti is ready with 50,000. Oh my God. Okay, Kanchan is also ready. अरे पहले से अगर मेरे पास होता तो मैं तो भाई, देखो ऐसे कहते हैं सेलिंग्स के लिए आप लोग ऐसे करके भी चीजें बेच सकते हो. अगर मैं घर घर जाके बोलता ये ले लो, ये ले लो, कोई नहीं लेता. जब मैं इसको अच्छे से समझा के, तो अभी आप लोग यू आर रेजिंग हैंड. ओके, नाउ प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये मशीन आपको मैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. If you have this machine, then you can really bring change in yourself. क्योंकि ये जो मशीन है, ये मशीन तो भाई मिलता है बाजार में, मगर इससे भी एक मशीन है जो मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं. एक काम करते हैं, इसको हम आज नहीं देंगे, नेक्स्ट हफ्ते देंगे. ओके, नहीं ठीक है, चलो आज ही दे देंगे आपको. So guys, today we are going to learn something. आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं. We can even bring change in the water by our thoughts. हम पानी के अंदर भी चेंज ला सकते हैं हमारे थॉट्स के जरिए. We don't need any machine. We don't need any machine. हम थॉट्स के जरिए एक नॉर्मल पानी में भी क्रिस्टल बना सकते हैं. एक नॉर्मल पानी में भी हम लोग क्रिस्टल बना सकते हैं. लेट्स सी हाउ. सो वी आर गोइंग टू मेक इट फ्री. हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. We can do it by our thoughts. The universe has energy and it produces vibration. हमेशा दिमाग में रखिएगा, यूनिवर्स हैज एनर्जी. ये यूनिवर्स में ना बहुत एनर्जी है, जो एनर्जी हमें दिखती नहीं है. आप देखोगे बहुत समय, आप बहुत लोगों के घर पे जाओगे, जैसे घर पे जाओगे ना, आपको अजीब लगेगा. आप अगर किसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाओगे, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है, वहां पे काफी नेगेटिव एनर्जी फील होगा. आप बहुत समय मंदिर में जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे या जीसस क्राइस्ट के चर्चेस में जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां का जो एनर्जी होता है वो काफी पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह में ना एक एनर्जी होता है. हर एक wherever you go, there is an energy in the environment, जो एक वाइब्रेशन पैदा करता है हमारे अंदर. It creates vibration inside us. And music is also the form of energy.
म्यूजिक में भी वाइब्रेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं सुबह सुबह भगवान का गाना सुनने, हमेशा गाना सुनिए, बिकॉज म्यूजिक हैज दैट वाइब्रेशन। म्यूजिक में वाइब्रेशन होता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, प्लीज गाइज लिसन, आई एम वेरी सीरियस। राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो। आप उस वीडियो में देखोगे कि एक वाटर क्रिस्टल है, जिसमें वाटर क्रिस्टल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा वो म्यूजिक से वाइब्रेशन बनेगी, और वाइब्रेशन से पानी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज होगा। गाइस, ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है? ये स्ट्रक्चर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उस पानी के अंदर मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं एनवायरनमेंट से। जैसे ही मिनरल फॉर्म्स हो रहे हैं, वाटर स्ट्रक्चर क्रिस्टल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। आई नो गाइस, थोड़ा सा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री सब मिक्स है इसमें, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वाटर क्रिस्टल तैयार हो रहा है, मतलब वाटर में हमारे एनवायरनमेंट से मिनरल एक्सट्रैक्ट होके उस वाटर में जा रहा है। तो एक म्यूजिक वाला हम लोग देखेंगे, म्यूजिक चलेगा और वाटर क्रिस्टल में चेंजेस आएगा। प्लीज इसको देखिए। This is crystallized water before it is exposed to music. Watch what happens when we play Mozart. These are all waters, and after they are exposed in front of music, they started growing their hexagonal structure. He is Mr. Masaru Emoto. He is the person who experimented this. Guys, I just want to tell you, these are the water crystals which is created by your vibration, your emotion. यहाँ पे तो हमने म्यूजिक देखा कि म्यूजिक बज रहा था और वो चेंज हो रहा था। इससे हम ये बता रहे हैं कि म्यूजिक से एक वाइब्रेशन जा रहा था वाटर में। नाउ व्हाट आई वांट टू से कि जो आप जो हमेशा सोचते हो, इफ व्हाटएवर थ्रू आउट डे यू थिंक एवरी टाइम, आप लोग सोचते हो पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाटएवर यू थिंक थ्रू आउट योर डे, इट ऑल्सो क्रिएट्स द वाइब्रेशन। ये भी वाइब्रेशन करता है। आई थिंक पूनम ने भी बोला कि जब हम लोग पानी पीते हैं ना, जब हम पानी के अंदर कुछ सपोज बोलते हैं थैंक यू, बहुत लोग पहले खाने के समय पीने के समय लोग आज पता नहीं कौन करता है, लेकिन बहुत लोग प्रार्थना करता है खाने के पहले। कभी सोचा है क्यों करता है ये लोग प्रार्थना? वाई पीपल प्रे बिफोर दे ईट एंड ड्रिंक? बिकॉज they give some positive vibration to their food and drink, and when they give the positive vibration, water में या खाने में ना बहुत सारी चीजें चेंज होती है। वो खाना प्योर होता है, वाटर मिनरलाइज्ड होता है, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस happens. It is very important. That's the reason the water is so damn important thing. हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा आपको दिखाने वाले हैं।
the thing I said, you know, आप लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हो, negative, positive, whatever you always listen, whatever you speak, that creates emotion, and emotion creates vibration. आप जो सोचते हो उससे भी vibration बनता है. आप you create vibration in the environment. Emotion creates vibration, and vibration changes the water. अब आप बोलोगे सर कहाँ का वाटर, हमारे बॉडी के अंदर का वाटर कि हमारे बॉडी के बाहर का वाटर? एवरीथिंग. आपके शरीर के अंदर जो वाटर है वो भी, और आपके शरीर के बाहर जो वाटर है, जो वाटर आपके बोतल में है, जो वाटर आपके फ्रिज में है, द वाटर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मिनरलाइज फॉर्म है, वो चेंज होता है बाय योर थॉट्स. आप जैसे सोचते हो, द वे यू थिंक. सोचो, देयर आर मेनी पीपल, यू नो, ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं यार मैं तो दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, फिर मेरे अंदर इतने बीमारी कैसे है, कहां से आया इतना बीमारी? ये बीमारी आता है क्योंकि हमारे शरीर में, यू नो, देयर आर फुल ऑफ वाटर. और अगर हम गलत सोचेंगे, हम लोग नेगेटिव सोचेंगे, हम लोग गाली देंगे, इट क्रिएट्स सम नेगेटिव चेंज इनसाइड आवर बॉडी. इट क्रिएट्स नेगेटिव चेंज इनसाइड आवर वाटर. जो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है 70% उसमें चेंज होता है. और उसमें जब चेंज होता है तो पूरा पूरा जो नेगेटिव चेंज होता है ना उस शरीर से, उसमें शरीर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. सो गाइस, हो सकता है कि हम लोग सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, बट अगर हमारा सोच नेगेटिव है तो इससे नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है. अगर आप लोग आज इस कोविड के दौरान अगर आप डरे हुए हो, अगर आप काफी नेगेटिव हो, अगर आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो रहे हो, तो ये आपके रिलेशनशिप में क्या कर रहा है वो तो बात की बात है. आपके शरीर के वाटर को डैमेज कर रहा है. इसका मतलब इनडायरेक्टली आप अपने बॉडी को डैमेज कर रहे हो. यू आर डैमेजिंग योर बॉडी. इफ यू स्टिल एवरी टाइम थिंक अबाउट इट. मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. आज मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जो मदर टेरेसा, आई थिंक यू ऑल नो मदर टेरेसा, राइट? मदर टेरेसा के घर से एक वाटर का सैंपल लिया गया था. तो क्या लग रहा है, उस वाटर के सैंपल में वो क्रिस्टल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है? होना चाहिए, क्योंकि उनका थॉट, उनका जो वाइब्रेशन होगा तो वो उस पानी में वो स्ट्रक्चर होना ही चाहिए. और हिटलर के घर के बाहर से भी पानी का सैंपल लिया गया था, बाहर से. क्योंकि यू नो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो कोई थोड़ी अलाउ करेगा कि मेरे शरीर के अंदर से निकालो. तो मतलब बाहर से सैंपल लिया गया था, मेरे घर के दूसरे जगह से सैंपल लिया गया था. एंड आई विल शो यू द रिजल्ट ऑफ दैट सैंपल. यू नो, जहां पे बहुत हैवी मेटेलिक साउंड होता है, हैवी मेटेलिक साउंड, जहां पे किसी के घर के सामने अगर यू नो कहीं पे मेटेलिक साउंड है, सपोज लोहा काट रहा है, ऐसे साउंड्स अगर आते हैं तो उस चारों यू नो तरफ के जो वाटर हैं, वहां जो वाटर के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो कुछ ऐसा होता है जैसा पिक्चर आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में. इसीलिए बोलते हैं जहां आप रहते हो वो कैसा एनवायरमेंट है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सोचिए आप कहाँ रहते हो, वहां अगर बहुत मेटालिक साउंड होता है, इट समहाउ क्रिएट्स डिफॉर्मेशन इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये वाटर सैंपल एक इंसान के घर से लिया गया था. जो इंसान हमेशा गुस्सा में रहता था, हमेशा बोलता था यू नो यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, ये सब बातें वो इंसान करता था. आई विल किल यू, यू आर सो बैड. एक ऐसे इंसान के घर के अंदर से ये वाटर का ड्रॉप लिया गया और उसका आप पिक्चर अभी देख रहे हो स्क्रीन पे. क्रिस्टल तो छोड़ो, ये वाटर को देख के ही लग रहा है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है. हाँ, पानी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये. कहीं पे भी आपको क्रिस्टल नजर नहीं आएगा. इट इज सो
अनमिनरलाइज्ड वाटर, इवन डल वाटर, पीने के योग्य नहीं है ये पानी। तो सोचो आप लोग सारा दिन क्या वाइब्रेशन देते हो अपने घर में, दैट मैटर्स। इफ यू आर ऑलवेज चिड़चिड़ा, क्यों हो रहा है, आई डोंट लाइक यू, अगर ऐसा आप हमेशा बोलते हो या सोचते हो, ये आपके घर के एनवायरमेंट को, रिलेशनशिप को तो मार ही देगा। आपके घर में जो पानी रखा हुआ है, जो आपके शरीर के अंदर जो पानी है, उसको भी डैमेज कर रहा है। थिंक अबाउट इट। आई डोंट नो ये आपको ये कैसा लग रहा है ये लेसन, बट ये चीज जब मुझे पता चला, आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ। ये वाटर ड्रॉपलेट लिया गया हिटलर के घर से। सी द कंडीशन ऑफ इट। मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट का माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एडोल्फ हिटलर के घर से लिया गया सैंपल। हेक्सागोनल का H भी नहीं है यहाँ पे। क्रिस्टल तो छोड़ ही दो, ना क्रिस्टल है ना है। अरे असल में हेक्सागोनल और क्रिस्टल तभी होगा जब उसमें मिनरल्स होगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल तैयार करेगा। इसमें कोई मिनरल का म भी नहीं है। तो आप सोचो वो इंसान कैसा था, कितना मतलब कितना हेट्रेडनेस था उसमें, दया नहीं थी उनमें। He never used to think about anybody's feeling. बात ये नहीं कि उनमें क्या था, बात ये है कि क्या आप में भी नहीं है। Never hate anyone. People are different. लोग वैसा नहीं होते जो जैसा हम चाहते हैं, कुछ लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं। Some people are different. They are not bad. हो सकता है कि मेरे साथ किसी की बन नहीं रही है, इसका मतलब नहीं है कि वो खराब है। अगर मैं सिंपल एक बात बताऊं, अगर मेरे साथ किसी की दुश्मनी होगी ना, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचूंगा। पता नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं आज देखता हूँ ऐसे बहुत घर हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दे फाइट, और वो लोग एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सोचो उस घर का वातावरण कैसा होगा। एक हेट्रेडनेस है। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, अगर मदर टेरेसा आपकी जगह होती तो क्या करती? मुझे नहीं लगता वो किसी को हेट करती। इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को बेटर बनाने के लिए, अपने को डेवलप करने के लिए, अपने थॉट्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपका थॉट बाहर वाइब्रेट कर रहा है, चीजों को चेंज कर रहा है। अगर हेट्रेडनेस मेरे और मेरे बीवी के बीच में है, तो वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं उसको नेगेटिव कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है उसको डैमेज कर रहा है। तो हम क्यों सिखाए अपने बेटे को, अपने बेटी को सामने वाले को हेट करो? नेवर डू दैट। नेवर हेट एनीवन। पीपल आर डिफरेंट। कुछ लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो लोग डिफरेंट वे से बात करते हैं। कोई खराब नहीं होता है। आप जिसको हेट कर रहे हो ना कोई इंसान है जो उसको लव कर रहा होगा। तो आप सोचो, आप उसको हेट कर रहे हो, कोई उसको लव कर रहा है, ऐसा क्यों? थिंक अबाउट इट। आपको लग रहा है कि वो खराब है, किसी और को लग रहा है कि वो अच्छा है। इसका मतलब है कि इंसान अच्छा है, बुरा है, इट्स अ मिक्स ऑफ इट। शायद उसके साथ मेरी बन नहीं रही है, आई डोंट नो, शायद वो मेरे लिए नहीं बना है, बट आई विल नॉट हेट एनीवन। अगर कोई पसंद नहीं है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, आई विल लीव दैट पर्सन। बट उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है। थिंक अबाउट इट गाइस। हम लोग जब भी मेरे साथ किसी का नहीं बनता, हम लोग बोलते हैं वो गलत है, वो खराब है। कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए वो अलग है। ठीक है, अब हमारे साथ नहीं हुआ तो दैट इज फाइन, बट वो भी अच्छा है अपने लाइफ में, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जब आप ऐसा थॉट करते हो ना, तभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आता है। सी दिस वाटर क्रिस्टल, ये एक ऐसा वाटर क्रिस्टल है जो एक ऐसे इंसान के घर से लिया गया जो हमेशा
किलिंग की बात करता है, आई विल किल यू, आई विल किल यू। उनके घर से ये वाटर क्रिस्टल मिला, क्रिस्टल छोड़ दो, वाटर का ड्रॉप मिला। थिंक अबाउट द ड्रॉप। सी दिस, ये वाटर ड्रॉपलेट्स उनके घर से लिया गया जिनके घर में लोग थैंक यू ज्यादा बोलते हैं। थैंक यू ज्यादा बोलते हैं। लव एंड अप्रिशिएट, ये देखो ये वाली क्रिस्टल 6 फॉर्म्स है, गोल्डन कलर की है। लव एंड अप्रिसिएशन, लोग प्यार से जीते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके घर से ये वाटर ड्रॉपलेट्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया। दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटेड बाय मसारो इमोटो, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। आई एम द पर्सन जो आपके बीच में ये ला रहा है, बट दिस इज द ट्रुथ। बात यह है कि अगर आपके घर से वाटर का ड्रॉपलेट्स मिलता है, मैं तो सोच रहा था कि आपके घर से वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट कराऊं और मसारो इमोटो को भिजवाऊं। कैसा निकलेगा ये देखना है। क्रिस्टल, या this is the crystal received from Mother Teresa's house. See, it is so golden and you can see the hexagonal structure in the water droplets. This is the real, आप इसको प्लीज गूगल में जाके और सर्च करें। This is what I am showing you. It is the experiment. This is not कि मैंने गूगल से बस जैसे जैसे तैसे करके बनाया है। This is experimented by Dr. Masaru Emoto, Mother Teresa. ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये एक उजीवाड़ा फॉल्स है, एक जगह पे पानी है, पानी गिर रहा था, तो वहां से ये वाटर ड्रॉपलेट लिया गया। वाटर ड्रॉपलेट का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखिए, इट इज ब्लैक इन कलर एंड कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें आप नहीं दिखेगा। फिर क्या हुआ, उस वाटर, वो सेम वाटर के ऊपर प्रेयर किया गया। प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना किया गया। प्रार्थना करने के बाद उसको फिर फ्रीजर में रखा गया, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को, और प्रेयर के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया लाइक दिस। इमेजिन द पावर ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ड्रिंक, व्हेन यू ईट, हैव सम पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब आप किसी से बात करो, अच्छे से बात करो, आपसे साथ बनती नहीं है तो मत बात करो, बट नेगेटिव वाइब्रेशन मत क्रिएट करो, इससे लॉस ही है, कोई अच्छा नहीं है। अभी आप हॉस्पिटल में जाओगे, बाहर जाओगे, लोगों के घर जाओगे, सब लोग अभी नेगेटिव वाइब्रेशन है, हर किसी के घर में, सब लोग डरा हुआ है। डर इज नेगेटिव वाइब्रेशन। क्या क्या होगा डर के, क्या होगा? आप प्रिकॉशन लो, खुश रहो, कोशिश करो कि आप सेफ रहने। अब नहीं होगा तो क्या कर सकते हो, यू हैव टू एक्सेप्ट। बट अगर आप डरे हुए रहोगे, हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट्स, जहां पे लोग लव यू, लव की भाषा ज्यादा बोलते हैं। सी दिस वाटर स्ट्रक्चर, दीज आर ऑल ओरिजिनल वाटर स्ट्रक्चर। सी व्हाट अ नाइस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रुथ। जिस घर में लोग सच बात बोलते हैं, जिस घर में लोग सच बात बोलते हैं, उसके घर से ये वाटर ड्रॉपलेट लिया गया। घर से या कोई शायद आश्रम से, जहां में वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसा था। मैं तो खाली सोच रहा हूं कि हमारे घर से अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा, हेक्सागोनल होगा या कुछ और ही होगा। लव एंड ग्रैटिट्यूड, सी द स्ट्रक्चर इज सो ब्यूटिफुल, लग रहा है कि एक डायमंड है। इट लुक्स लाइक अ डायमंड राइट नाउ। आफ्टर मेडिटेशन, ये ऊपर वाला है बिफोर मेडिटेशन एंड नीचे वाला है आफ्टर मेडिटेशन। लॉट ऑफ चेंजेस यू कैन सी। इसका मतलब है कि जो लोग, जहां पे मेडिटेशन लोग करते हैं, आई डोंट नो आप लोग मेडिटेशन करते हो कि नहीं, बट इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। Believe it or not, it is real.
रिसर्च्ड एंड प्रूवन, ये रिसर्च किया गया है। तो इमेजिन यार, ये सब चीजें हमें अगर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती तो शायद और अच्छा हो सकता था। तो वही मैं बता रहा हूँ, सोचिए एक आपका थॉट वाइब्रेशन क्रिएट करके आपके बॉडी का वाटर भी चेंज करता है, आपके बाहर में जो वाटर है वो भी चेंज होता है। गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, इसको प्रूव करने के लिए ये टेस्ट आज ही करें। एक 3 जार्स ले, 3 जार लें, 3 जार में आप एक में आई यू आर एन इडियट लिखें, एक में थैंक यू लिखें और एक में इग्नोर्ड लिखें। और ये तीनों जार में आधा जार आप पानी भर लो एंड थोड़ा सा उसमें राइस, पुट सम राइस इन दैट। इसको प्लीज करना, दिस विल ब्लो योर माइंड। 3 जार्स रखना, उसमें पानी, हाफ पानी और उसमें चावल रखना। अगर टाइम है तो जरूर करना, आज ही करना, नहीं तो भूल जाओगे। एक में लिखना इडियट, एक में लिखना थैंक यू, एक में लिखना इग्नोर्ड। उसको 4 से 5 हफ्ते के लिए, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए तीनों को अलग अलग घर के अलग अलग जगह में रख देना। You keep it different places in your home. Every day, हर दिन सुबह में आप पहले वाले जार के पास जाना और बोलना यू आर इडियट, यू आर इडियट, यू आर बैड, आई डोंट लाइक यू। एक नेगेटिव इमोशन देना उस जार में। फिर दूसरे तरफ जाना, एक जगह पे तीनों जार मत रखना, अलग अलग जगह रखना। फिर अलग जार में जाना, थैंक यू लिखा हुआ है उसके पास जाना, थैंक यू वेरी मच, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। और एक जार के पास जाना जिसमें इग्नोर्ड लिखा, उसके पास जाना और बोलना आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू आर सो बैड। हंसो मत, डू दिस एवरी डे। मॉर्निंग में ये तीनों करना इमोशन के साथ, एकदम रियल इमोशन के साथ, हंसना नहीं है। एंड आफ्टर 1 मंथ यू सी द कंडीशन। यहाँ पे पिक्चर नहीं है बट मैं बता दूं, जो जिसमें था ना कि यू आर एन इडियट, उसको अगर खोलोगे ना वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। उसमें जो राइस था ना, वो राइस पूरा ब्लैक हो जाएगा। जो थैंक यू लिखा था ना, उसके पास जाओगे अगर, तो वो जो राइस रहेगा ना, व्हाइट राइस, वो येलोइश हो जाएगा, येलोइश। एक ब्लैक हो गया, थैंक यू वाला येलोइश हो गया। और जो इग्नोर्ड है ना, आई डोंट लाइक यू, आई इग्नोर यू, वो पूरा एकदम मतलब स्टेल, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सड़ गया, उसका राइस का शेप बिगड़ गया, पच गया एकदम, पूरा एकदम ब्राउन कलरिश, एक अजीब सा, जैसे सड़ जाने से जैसा होता है ना कलर, एकदम वैसा कलर हो गया। इमेजिन कि एक थॉट से क्या हो सकता है। हम अपने बच्चों को जब कुछ बोलते हैं, यू कैनॉट डू इट, यू आर सो बैड, उसके अंदर बहुत रिएक्शन होता है। अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे ही करो, उसके अंदर भी बहुत चेंजेस होता है। दैट इज द पावर ऑफ एनर्जी, दैट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज द पावर ऑफ योर वाटर, दैट वाटर which you contain inside your body. It's a big thing, guys, and I request everyone to do this experiment at your home. Water is precious. It does not only quench our thirst but also creates magic with our thoughts. सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता है, पूरे हमको जिंदा रखता है, हमें ताकतवर बनाता है, हमारे अंदर मैजिक करता है। सो गाइस, प्रोटेक्ट वाटर। सिर्फ बाहर का वाटर नहीं, अंदर का वाटर। वो कैसे? बाय योर पॉजिटिव थॉट्स। लोगों के लिए अच्छा सोचो। हो सकता है वो आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव किया हो, उसको फोन करो या उसको चिट्ठी लिखो या उसे मैसेज कर दो, भाई आई फॉरगिव यू, जाओ यार, तुमको माफ किया, तुमको मैंने फ्री कर दिया।
इतना दिन तुमको दिमाग में रखा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, अभी निकाल दिया, माफ कर दिया यार तेरे को। एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट यू, I want to think about good people. I want to think about knowledge. I want to think about truth, सच्चाई. I want to think about eternal love. I want to love people. I will not think about hate. मैं मार दूंगा, you are so bad, I cannot forget you, you know, ये सब वर्ड अभी यूज नहीं करना है। मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा वर्ड यूज करूंगा। मैं किसी को नफरत नहीं कर सकता, जिसके साथ मेरी नहीं बनेगी हम उससे दूर रहेंगे, बट नफरत नहीं करेंगे। क्यों करेंगे नफरत करके, अपने आप को बर्बाद क्यों करेंगे? आई विल ऑलवेज थिंक कि भाई मेरे बारे में जो नेगेटिव सोचता है उसका भी भला हो। आई एम टेलिंग यू गाइज, ये बहुत पावरफुल है। कुछ लोग आप बोलोगे सर ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। जो सोच रहा है नहीं पॉसिबल है वो कभी नहीं कर पाएगा। यू हैव टू गेट इट डन। जब आप ऐसा इंसान बन जाओगे ना, योर पर्सनालिटी विल बी सो अट्रैक्टिव, सो डायनामिक, सो गुड, यू नो, इट विल बी सो इटर्नल। फिर क्या, फिर आप हेल्दी रहोगे, आप ज्यादा दिन तक जियोगे, आप मजबूत रहोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपकी स्माइल में ताकत रहेगा। यू विल बी एन ऑसम पर्सन।